ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੈ ਰੁਝਾਨਦਾ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੋਠੀਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸੈ ਰੁਝਾਨਦਾ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੋਠੀਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 74 ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਹਲੇਮੀ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੂੜ ਅਮਾਵ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਝੂਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ, ਪਖੰਡ ਆਦਿ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਲਾਤੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਲੈਂਦੇ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਸੰਪਤੀ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੰਗਾਣਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਫੜਾਤਾ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ
ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗੰਗਾ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾ ਪਟਾਇਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੋਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਲਕਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਲਕ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ? ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਰਾਜੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੈ ਖੁਦਾਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਹੱਥ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਡੰਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਲੋਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮੁਰਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜੂਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋਵੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਛੱਛੋ ਪੰਜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਾ ਗੜਵੇ ਵਾਲਾ ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉੱਠਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਟੇਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਨ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ,
थुकना भी धरती ते नहीं हैगा, तुसी कुजे च थुको, आपदे पिछे एक बौकर झाड़ू बन के रखो, कोई मोड़ी बन के रखो, तो आके तुहाड़ियां पैड़ां भी ढह जाण। पैड़ां कलियां धरती तो नहीं ढाउणियां सी, दुनिया चों खत्म करने चाहुंदे सी संसार नूं। को सतनाम, बस अपने वास्ते ही सारी दुनिया नूं आपदा रंग ही रंगना चाहुंदे सीगे। किसी वेले इन्हां दे उत्ते मुगलों ने भी कीता सी काम यही, क्योंकि सज़ा तो देनी सी ना। इन्हां ने पहलां हिंदुस्तान की भारत की जनता ते धक्का कीता, फिर मुगलों ने आके इन्हां नूं सबक सिखाया। फिर मुगलों ने सोचा भी असीं भी सारे मुगल ही बनावांगे, तुर्क ही बनावांगे, तो हिंदुआं नूं वढना शुरू किया। कोई सतनाम सी। पर फिर परमेश्वर नूं दया आई, 9वें पातशाह जी ने जाके औरंगे नूं रोकना किया भी तेरा भी काम गलत है। पहला इन्हां दा गलत सीगा, ये लोकां नूं शूद्र कह कह के दुख दिंदे सीगे, मंदिरां चों बाहर कढदे सीगे, तो सज़ा इन्हां नूं मिली ना फिर तुर्कां वेले। को सतनाम श्री। तुर्कां ने फिर इन्हां नूं सज़ा दित्ती। पर जो तुर्कां दा भी फिर एंड हो गया, अंत हो गया, फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं शस्त्र चकना पिया, उन्हां तुर्कां नूं भी रोकना पिया भी तुसीं गलत कर रहे हो, ये तो धक्का हैगा। जिहड़ी जनता जिहड़े धर्म च पैदा हुई है उन्होंने अपने धर्म नाल जिउण दो यार। रंग बरंगे फुल सोहणे लगदे आ, तुसीं कहनो सारे चिट्टे होण, सारे लाल होण, सारे भगवे होण, ये की मतलब होया? कोई सतनाम श्री। परमेश्वर ने रंग बिरंगी दुनिया बनाई है, बंग के बंगाली हैं कि दिल्ली के दिलवाली हैं, सब तेरी आज्ञा में चलता है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिनो पाई, वो कमला हैगा जिन्हें रंग बिरंगी बनाई है। तुसीं वाले सियाने कि इक्को रंग करना, भगवा ही भगवा, भगवा ही भगवा। कोई सतनाम नहीं, परमेश्वर के हुक्म अंदर चलो। तो बाबे नानक ने आके परमेश्वर का हुक्म सुनाउणा शुरू किया इन्हां लोकां नूं, और 10 जामियां दे विच वरत के संसार नूं जिउणा सिखाया। जियो ते जीण दिओ, खुद भी जियो ते दूजिआं नूं भी जिउण दिओ। भगत रविदास जी की जो हिस्टरी पढ़ी है ना, वो हिस्टरी जी साडे शहर सामने नहीं आई। भगत जी के अंदरों सोने की तार का जिन्हें वो विखाते आ, कहानियां बनाइया हुई इन्हां लोकां दीयां भी भगत जी ने अपने अंदरों जिन्हें कढ़ के विखाया भी मैं भी पिछले जन्म का ब्राह्मण हाँ। बिल्कुल नहीं उन्होंने काम किया, असल दे विच उन्हां नूं मारन का एक ढंग सी, साजिश सी। को सतनाम श्री। भगतां दुख नित साडे सामने आ। भगत नामदेव जी नूं मंदिर चों बाहर कढ़ना, कबीर साहब जी की बेइज्जती करने वास्ते लॉसमेंट कर देनी कि उन्होंने घरे लंगर चलूगा परसों, वो तो परमेश्वर ने लाज रखी भगत की, उधर तो घट नहीं की सी। को सतनाम श्री। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अज का शब्द जो आप आरंभ किया है, हुण होआ हलेमी राज जी, हुण हुक्म होआ मेहरबान दा, पै कोई ना किसे रिझान दा। हुण कोई किसी नूं दबा नहीं सकता गा। बाबे नानक ने जदों आके परमेश्वर का हुक्म सुनाया तो कई हंकारियां नूं करामात दे गोले नाल सिद्धा किया। कोई सतनाम सी। बहुते हंकारी लोग जिहड़े सीगे उन्हां दस्सिया जे हिंदुआं नूं ज्ञान दिता तो जाके मुसलमानां नूं भी ज्ञान दिता भी तुसीं ये मत समझो भी असीं सही हाँ। जिहड़ा खुदा है केवल साडे कोले मक्के 'च ही वसदा है, वो सारे पासे वसदा है। उत्थे जाके मक्के नूं घुमा के विखाउणा, करामात दा गोला मार के उन्हां नूं इह ज्ञान कराउणा सीगा कि रब 4 छपेरे आ, एक पासे नहीं हैगा छिप दे कन्नी। इवें इन्हां नूं हरिद्वार वालिआं नूं भी समझाया, गंगा दा पानी पुठे पासे सिੱਟ के। जद पुछदे आ भी बाबा तू की करदा, बाबा जी कहते तुसीं की करदे हो? वो कहंदे असीं तां सूरज नूं पानी दिंदे आ। क्यों? काहदे वास्ते? ये ब्राह्मण कहंदे आ भी साडे जिहड़े मरे हुए बुढ़े आ पुराने पितर, वो सूरज दे पुत्र धर्मराज कोले आ। अच्छा, असीं धर्मराज दे प्यो नूं पानी दिंदे आ ते धर्मराज साडे प्यो नूं पानी दे दूगा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कहानियां बनाइया हुई ब्राह्मणां दीयां। कहंदे अच्छा हाँ जी, कहंदे असीं सूरज नूं पानी दिंदे आ
तो ये पानी साडे पितरां कोले जांदा, बाबा कहते थले डुली जांदा, नहीं मन्निया किसी ने। धन गुरु नानक देव जी फिर बिच खड़ के पत्तन ते भर भर के बुक ननकाना साहब कन सिटना शुरू करता। को सतनाम शिप दे वाल नूं हरिद्वार चों गंगा चों। सारे लोग हैरान भी, यार आप सारे तो उपर नूं पानी दे रहे हैं सूरज नूं, ये पता नहीं पत्तन ते सिੱਟੀ जांदा चक चक के, इहनूं पता नहीं हैगा। कहते बाबा तू पानी कित्थे दिना? वो कहना भरावो मैं कल्ला कल्ला पोता माँ प्यो दा, मैं कणक बीज के आया सी आउंदा होया, मैं सोचा चल मैं भी कणक नूं पानी ला दें। को सतनाम जिन्नी क दुनिया की मत है, जे उस स्टेज पर समझाया जाए तो समझ आउंदी है, नहीं तो नहीं आउंदी। को सतनाम श्री हुण ब्राह्मणा ने स्टेज चक ली उतली भी तुसी पानी दिओ सूरज नूं, इत्थे आके दान पुण्य करो, तुहाडा ग्रह टल जूगा, तुहाडा पानी सूरज को मिल जूगा, ते सूरज का पुत्र धर्मराज तुहाडे बुढ़िया नूं पानी दे दूगा जिहड़े मरे हुए आ पहलां। को सतनाम श्री वो पता नहीं किधर नूं गए बेचारे। भगत जी कहने कहाँ ते आवे कहाँ जावे, किसी ने नहीं जानिया हजे तक। बाबा जी कहने मैं तो आदि कणक नूं पानी लाउणा, कहते कणक नूं पानी किवें पहुँच जूगा इत्थों? कहने क्यों? दिमाग तो कम लो, सूरज कितनी दूर है। जिहड़े पढ़े लिखे सी ब्राह्मणों बोले इन्ने अरब इन्ने को दूर आ। कहने फिर साडा ननकाना साहब तो सारा 1000-1200 कोह ते ही है। को सतनाम श्री फिर तो साडे पिंड पानी पहुँच जूगा। फिर सिटन लगे, कहने किहड़ा पिंड है? कहने तलवंडी, रायपुर की तलवंडी। कहने उत्थे किवें जाऊगा? कहने मूर्खो पानी नीवें थां नूं जांदा है, जे मैं इत्थों नहर पट के लै जाना खाली पट के ते पानी उत्थे लै जाऊँगा, ते सोडा पानी कदे सूरज कोले नहीं जा सकदा, तुसीं मूर्ख हो। फिर उन्हां नूं समझाया। फिर जिहड़े सियाणे लोग सी गल समझण वाले, वो जाके बाबे नानक दे कोल बैठ के फिर उत्थे विचारां चलीआं। फिर समझाया भी बंदे नूं ज्ञान तो काम लेना चाहिए, एवें अन्नेवाह अज्ञानता दे मगर नहीं लगना चाहिए। तो पंजवें पातशाह जी ने वेख्या भी हुण काफ़ी कंट्रोल हो गया, दुनिया काफ़ी सीधे रस्ते पै गई। कोशिश बड़ी की अखौती धर्म के मुखी ब्राह्मणों ने इस सच के मार्ग नूं बंद करन दी। बाबे नानक दे नाल भी इन्हां ने बहुत सारे ढिक्के लए। उस तो बाद अगे चल के जिवें कि नानू पंडित होया, नानू पंडित अपने आप नूं जगत जीत पंडित दसदा सी। को सतनाम सी नानू पंडित ते दुनिया नूं जिद्दा फिरदा सी, उठ लद्दिया होया सी ग्रंथां दा, ते बामणां नाल सियाणियां नाल चर्चा करदा, ते चर्चा करके उन्हां दे ग्रंथ खोह लैंदा उन्हां नूं हरा के। ते बाबे नानक जी नाल मिलाप हो गया एक थां। इन्हें सोचा भी बाबा बाबे नानक नूं भी हराइए ताकि जिहड़ा इन्हें मार्ग चलाया सच दा, लोग इहदे मगर लगनों बंद हो जाने, हरा दिए। कहने मेरे नाल चर्चा करो फिर बैठ के। कहने आ जा। कहने बामण ने सामने एक ना दीवा जगा के रखता। कहने लगे ऐं दसो ये जोत कित्थों आई आ? बाबा जी ने हथ मारिया, बुझ गया। कहना हुण तू दस गई किधर? नानू पंडित चक्कर च पै गया भी ये तो पुट्ठा ही सवाल मेरे ते हो गया। हुण तू दस कित्थों आई है? एक घड़ियाल नूं आवाज़ मारी, घंटी मारी घड़ियाल दे। बाबा जी कहंदे ये आवाज़ कित्थों आ रही है दस? हौली हौली वो खत्म हो गई, कित्थे समा गई। तो ये ज्ञान आसा जी की वार दे विच बचन हैं सतगुरां दे। तो उस नानू पंडित नूं जदों ये ज्ञान दिता तो फिर वो पैरी पै गया। असल विच ना किते वेदां दे विच कहंदे लिखिया होया है भी नानक आयन, भी नानक आऊगा। वो नानू पंडित अपने आप नूं नानक ही कहाउण लग्या सीगा भी मैं वो नानक हाँ जिहड़ा कलयुग विच अवतार आउणा परमेश्वर दा, वो मैं ही हाँ। तो जदों बाबे नानक तो हार गया फिर सारिਆਂ ਨੂੰ कहा अपने चेले बालकिਆਂ ਨੂੰ भी असली नानक तो यह है मित्रों, मैं तो झूठा ही बनया फिरदा सी। को सतनाम सी इन्हां दे पैरीं पाओ। तो इस करके फिर पंजवां जामा आ गया गुरु अर्जन देव महाराज जी का। ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कर्मकांड पखंड जिहड़े हैं खत्म होण लगे हैं। नहीं तो ब्राह्मण नावै जियां घाए
ब्राह्मण वेदां दे आसरे जीवां दी हत्या करदा सी, लुੱਟਮਾਰ करदा सी। श्राद्ध भी तो लुੱਟਮਾਰ ही है और कुछ भी नहीं हैगा। ਜਿਹੜੇ कर्मकांड रीति रिवाज चलाए आ ये सब लुੱਟਮਾਰ ही है। ये तो आपां नूं धन है गुरु नानक पातशाह जी ने आपां नूं बचाया इन्हां चीज़ां तो, पर फिर भी हजे बचन नूं तैयार नहीं आपां। प्रीतम जी कहंदे ब्राह्मण नावै जियां घाए, और काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाए। काजी हो गए राजनीति, मतलब राजनीति रिश्वती हो गई है। ये रिश्वत लैके वड्डी लैके सच नूं झूठ ते झूठ नूं सच बना दिंदे आ। ब्राह्मण धर्म दे मुखी, काजी मतलब राजनीति वाले, जोगी जुगत न आने जाने अंध। जिहड़े जोगी सी गोरखनाथ दे चेले, इन्हां नूं भी जुगती नहीं सी। तीने उजाड़े का बंद, ये तिन्ने दुनिया नूं उजाड़न ते लगे हुए सी। बाबे नानक ने वसदे कीते द्वारा। को सतनाम श्री। धन गुरु अर्जन देव जी के समय तक काफ़ी बदलाव आ गया दुनिया विच। तां पंजवें पातशाह जी कहन लगे हुण होआ हुक्म मेहरबान दा। हुण परमेश्वर दा हुक्म चलन लगे। असल विच दुनिया विच मेहरबान परमेश्वर दा पै कोई ना किसी रिझाण दा। हुण कोई किसी नूं जबरदस्ती नहीं करता, धक्का नहीं करता। लोकां नूं ज्ञान आ रहा है। जिहड़े धक्का झल रहे सी वो भी धक्का झलणों हट गए। वो भी उठे जागे, उन्हां नूं जगाया, सुचेत किया। परजा अन्नी ज्ञान बिन, कूड़ कुसत मुखों अलाई। जिहड़े राजे सीगे, जिवें अजकल भी वोटां तो पहला ऐलान करते हैं असीं आए कर देंगे तुहाडे वास्ते, आए कर देंगे, मुड़ के वोटां लैके मुकर जाते हैं। जनता उन्हां नूं वोटां पाउंदी है, भोली भाली भी आए हो जाऊगा। ये गल बाणी च किवें लिखी आ? परजा अंधी ज्ञान बिन, कूड़ कुसत मुखों अलाई। ये झूठ झाठ बोलते न। परजा अज्ञानी है, परजा नूं ज्ञान नहीं, ये मगर लग जाते आ। कदी उहनूं कुर्सी देती, कदी उहनूं देती। सारे लुट्टण वाले ही है इत्थे। को सतनाम सी। कोई भी जनता का भला सोचने वाला नहीं है बाबे नानक तो बिना। तो मेरे प्रीतम जी कहते हुण 10 गुरुआं दे समय ये धक्का चलदा सी ते 10वें पातशाह जी ने ते 6वें पातशाह जी ने तलवार चक के सिद्धे कीते। जिवें आम कहावत है, बिगड़ियां तिगड़ियां दा डंडा ही पीर आ। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल लड़ाइयां कीतियां शाहजहां ने, ते उस तो पहला 5वें पातशाह जी ने शांति नाल शहीदी दे दिती। ते चंदू वर्गे जहांगीर वर्गियां नूं गुरु प्यारिओ हंकार हो गया भी असी जो मर्जी करिए, ये साधां दी गद्दी है, की कर सकते आ। पर 5वें पातशाह जी ने रावी दे कोल शरीर त्यागण तो पहला उन्हां 5 सिखां नूं भाई जेठा लंगाहा होरां नूं कह दिता सीगा कि जाके कह दिओ हरगोबिंद नूं हुण शस्त्रधारी होण दी लोड़ आ, हुण इदां काम नहीं चलना, मैं तां चलिया इस तरह ही। कहो सतनाम सी। मैं तां शांति रख के देख लई आ, तत्ती तवी ते भी बैठ के देख लिया, पर इन्हां नूं अकल नहीं आउणी हुण डंडे बिना। जाके कहो हरगोबिंद साहब नूं शस्त्रधारी होवे ते संगत नूं भी शस्त्रधारी करे। कहो सतनाम सी। जद आके उन्हां 5 सिखां ने जिहड़े गुरु अर्जन देव जी नाल लाहौर गए सी, सारी कहानी दसी। उस दिन तो बाद ही पहला सहज पाठ किया गया, एक बाबे बुढ़े ने किया, गुरु अर्जन देव जी दे समाप्ति दे सोग समागम दे भोग पाए गए। 17 दिनों बाद या 13 दिनों बाद उदों भोग पैंदे सी। फिर जिस दिन भोग पाया गया तो उस दिन एक थड़ा बनाया गया हरमंदर साहब के सामने करके, क्योंकि हरमंदर साहब भगती दे वास्ते है, तो सामने शक्ति तैयार करनी सीगी। इस करके सामने थड़ा बना के फिर उस पर विछाई की गई, तैयारी की गई। उत्थे भोग पाए गए सहज पाठां दे। संगत नूं सद्दा दिता, भोग ते सारी संगत इकट्ठी हुई, मसंद लैके आए सारी संगतां नूं। ते उस दिन ही पातशाह जी ने ऐलान किया, सिखो आने वाली 10वीं है जिहड़ी, उस दिन गुरता गद्दी की जिहड़ी है रस्म होवेगी, तो तुसी मेरे वास्ते की लेके आओगे? महाराज की लियाइए?
वधिया वधिया घोड़े, वधिया वधिया नौजवान ते वधिया वधिया शास्त्र, क्योंकि आपां फौज तैयार करनी है हुण। कहो सतनाम श्री। फिर उस दिन जिद्दे गुरता गद्दी की रस्म होई ना, संगतां पहुंचियां, शास्त्र घोड़ियां दी लैना लग गईयां गुरु घर दे विच, शास्त्रां दे ढेर लग गए। और बाबा बुढ़ा जी का समा आया गद्दी देण दा। गुरु हरगोबिंद साहब तैयार प्रत्यार होके उस तख्त ते बैठ गए जिसनों असीं अज अकाल तख्त कहने आ, पहले नूं थड़ा साहब कहने सी, गुरुद्वारा बुंगा साहब कहने सी। कहो सतनाम, अकाल बुंगा। तां गुरु प्यारिओ उत्थे बैठे ते बाबा बुढ़ा जी आए, और बाबा बुढ़ा जी पहली रीति मुताबक मंजी साहब, सेली, टोपी, माला जो लुंदी सी गुटे निशानियां वो लिया के सामने रखियां भी तुहानूं जी गद्दी दिंदे आ। हरगोबिंद साहब कहने बाबा जी इन्हां रख दिओ हुण स्टोर च, साडी बोली च तोशा खाना कहने असीं उसनूं, ये समान रख दो तोशे खाने च होना। तो फिर महाराज कहते हुण लियाओ 2 तलवारां जिहड़ियां आपां स्पैशल तैयार कराइयां सोने दे मुठे वालियां। कहो सतनाम श्री। वो दिओ मैनूं गुरता गद्दी दे समय ते। फिर वो मंजी, सेली, टोपी आदि जो समान सी, माला आदि, ये सब अंदर रख दिता। फिर 2 तलवारां लिआंदियां, गुरता गद्दी का तिलक दिता गया। तो फिर बाबा बुढ़ा जी ने एक वड्डी श्री साहब गात्रे समेत चक्की है और हरगोबिंद साहब जी दे पा दी है, तो तलवार सज्जे पासे चली गई। सोचदी शायद गलत पै गई, पर गलत नहीं, पहले ब्योतबंदी सारी सीगी। पहला सज्जे पासे तलवार पाई है, धर्म दी आ, फिर खब्बे पासे पाई है, राजनीति दी है, फिर दूजी पाई। 2 तलवारी बधियां, एक मेरी दी, एक बीरी दी, एक अजमा दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी। 5 प्याले 5 पीर, 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन पाया काया पलट के, मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियां, रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा, बड़ जोधा वो परि उपकारी। सिख पातशाह जी नूं पुछदे आ, महाराज ये आप जी दे 6 रूपां दे दर्शन हो गए, कि आप जी दे ऐसे रूप होर भी होणगे? 6 महलां तक दर्शनहारी, अगम अगोचर सतगुरु, बोले मुख ते सुनो संसारी, जुग जुग सतगुर धरी अवतारी। ये गुरु तो हरेक जुग दे विच ही आउंदा रहिंदा है, ते जुग जुग दा अर्थ है 2 + 2 4, साढ़े 4 स्वरूप होर होणगे। कहो सतनाम श्री। दोआं नूं जोग कहंदे आ, जिवें 2 बलदां नूं एक पंजाली च पाईए ते ओनूं जोग कहंदे आ। कहो सतनाम श्री। 4 रूप होर होणगे। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे हुण हलेमी दा राज होण लगे है। जिहड़े सुधर गए प्यार नाल सुधर गए, चौंकार अजा हम हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। जिहड़े प्यार नाल मन गए ठीक है, जिहड़े नहीं प्यार नाल मने, हथ बनिया नहीं मने, समझाया नहीं मने, फिर 10वें पातशाह कहने फिर तलवार चकनी जायज़ हुंदी आ, ते 6वें पातशाह ने तलवार चक्की फिर। और पहला जंग बाज पिछे होया। सतगुरु जी ने फौज शास्त्र धारी करती, सारे सिखां नूं हुकम दिता भी शास्त्र रखिया करो। रोज़ आके सुनेहा दिंदे हो जी साथों दुशाले खोले, साथों घोड़े खोले, तुसीं शास्त्र क्यों नहीं रख देगे? मुकाबला करो इन्हां लोकां दा। लुटेरियां जी सोथों समान खोंदे आ, तुसीं घट नहीं हैगे, तुसीं भी सारी ताकत रखदे हो। इउं ताकतां दित्तियां 6वें पातशाह ने। फिर लुटेरे रस्ते भी संगतां लुटनों हटे, जो संगतां ने बरछे तलवारां कोले रखणियां शुरू कीतियां। कहो सतनाम श्री। तो फिर गुरु प्यारे हो, सतगुरु शिकार खेडन जाते हैं जंगल च। एक दिन शाहजहां भी शिकार खेडन आ गया लाहौर बनियो, तो 6वें पातशाह भी चले गए शिकार खेडन। थोड़ी दूरी ते किते शाहजहां खेड रहा, इधर 6वें पातशाह अपनी फौजां नाल घुम रहे न। सतगुर ने भी बाज छड्डिया एक, तो शाहजहां ने भी कोई बाज छड्डिया, तो गुरु का बाज शाहजहां दे बाज दे मगर पै गया, तो उन्होंने घेर के डराउंदा होया, तो उस बाज नूं लिया के गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सामने सिटता। बाज का सुभाव हुंदा है मालक दे कोल जानवर नूं जिउंदा लैके आउंदा है, फिर मालक उसनूं मार के खवाउंदा भी आ। कोई सतनाम श्री। ये बाज जिउंदा लिआंदा, ते हरगोबिंद साहब जी ने उतों फड़ लिया, उन्होंने पलोसिया,
प्यार किया, वो दिल धड़क रहा सी, उन्होंने टिकाने किया। इन्ने शाहजहां दे बंदे वो बाज लभदे लभदे आ गए और गुरु साहब दे कोल बैठा बाज देख कहंदे बाज तो साडा है, सोडा बाज है, साडे बाज ने लैके आंदा, सानू की पता किहदा? कहंदे शाहजहां दा बाज है, मोड़ो। कहंदे शाहजहां दा? फिर तो बाज दे नाल हुण ताज भी लवांगे ते राज भी लवांगे। कहो सतनाम, बाज नहीं देना हुण तुहानूं असीं। पहली लड़ाई बाज पिछे हुई सी। कहो सतनाम श्री। खैर मनोबिरतियां उत्थे रखिए। ये गुरु साहिबां ने किरपा की। पंजवें पातशाह जी कहंदे हुण हुक्म होआ मेहरबान दा, पै कोई ना किसे रिंझान दा। हुण कोई किसे नूं दबाउंदा नहीं, दुख नहीं दिंदा। सब सुखाली बुठिया। हुण जनता जिहड़ी है पहलां लुट्टी जा रही सी, पहलां कुੱਟੀ जा रही सी, दुखी कीती जा रही सी। हुण जनता भी सुखी वसदी आ। ए होआ हलेमी राज जियो। असली राज इहो जिहा होना चाहिए जिहो जिहा भगत रविदास जी कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। आम खूब वतन गह पाई। ये निशानियां सचखंड दियां भी है ते ओह जिहा राज ये दुनिया विच भी किते बन जावे ते नज़ारा ही आ जाए, दुनिया सुखी हो जावे। को सतनाम सी। भगत रविदास जी कहते ऐसी दुनिया दे विच राज होना चाहिए ते वो राज गुरु साहिबां ने शुरुआत की। अगे जाके 10वें पातशाह ने खालसा पंथ साजिया और खालसा पंथ जिहड़ा है ये दोनों का ही जिम्मेवार है, दोनों का ही गवाह है। जिहड़ा भी दुखी करता खालसे ने उसनूं सोधा लाउणा ते लाउंदा आ रहा है, अज तो नहीं शुरू तो ही। खालसा साजे ही इसे वास्ते है। जे तुरक धक्का करदा तो फिर उन्होंने सब कुछ सिखाउणा, जे हिंदू उन्होंने नाल धक्का करदा फिर उन्होंने सब कुछ सिखाउणा। ये दोनों का ही जिहड़ा है गवाह। खालसा पंथ अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये अकाल पुरख की फौज बनाई है, क्योंकि पहला लोग उड़ीकते सी अवतार आऊगा फिर वो सानू सुख देऊगा। गुरु पातशाह कहते मैं सदा सदा लिए अवतार छड़ दिता है, खालसा पंथ हुण यही रक्षा करेगा। को सतनाम श्री। और समय समय ते आपां वेखदे हां आ खालसा एड ने बड़ा खालसा पंथ दा नाम उच्चा कीता है। जगह जगह ते जिथे आफतां आउंदियां कुदरती जां जान बुझ के लोकां वल्लों लिआंदियां, उत्थे जाके खालसा एड उन्हां निमाणियां नताणियां नूं संभालदा है। ये गुरु दा मकसद जिहड़ा वो पूरा कर रहा है। को सतनाम श्री। खैर इहो जे बहुत कार्य चला रहा खालसा पंथ, गुरु किरपा करन। मेरे प्रीतम जी कहंदे हुण सारे सुखी हो रहे हैं, असल विच इहो जिहा राज होना चाहिए। इहो जे राज दे विच मानो चिम चिम अमृत वरसदा, जिवें मिन्ना मिन्ना जां मींह पैंदा होवे ते किन्ना माहौल वधिया बन जांदा है। कहंदे हुण ऐसा माहौल बन गया सुख दा। बुलाया बोली खसम दा। धन गुरु अर्जन देव जी कहने मैं जो भी कह रहा ना उस मालक दे हुक्म अंदर कह रहा। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, जह भेजे तह जावा। सब नगरी में एको राजा, सवे पवे तह थावा। कोई थां माड़ा नहीं ते कोई थां परमेश्वर तो बगैर नहीं। जिवें मक्के नूं घुमा के दसिया, जीवन मुल्लां नूं विखाया बाबे नानक ने भी तेरा मक्का केवल इधर नहीं है, छिपदे वल चढ़दे वल भी है, उत्तर वल भी है, दखण वल भी है, सारे पासे ही है। खुदा सारे पासे ही है। प्रीतम जी कहंदे मैं उहदे हुक्म दे अंदर बोल के दसदा हाँ तुहानूं। पंजवें पातशाह कहंदे बहुमान किया तुदे उपर है, मालका मैनू तेरे ते मान है, मैनू तेरे ते मान है। जां तू मेरे वल है तां क्या मो छंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट ना आवी खाए खर्च रहंदा। ये वैरी मित्र सब कीते आ, ये हलेमी राज है। हुण दुश्मन भी मित्र बन रहे हैं। कहो सतनाम। लुटमार बंद हो गई है। कल परसों एक खबर जी पढ़ी, एक मुसलमान बच्चा किते पानी पीण चलिया गया मंदिर की टूटी ते, फड़ फड़ के कुट कुट के लाशां पातियां जवाक। देखो सतनाम श्री। ये हलेमी राज थोड़ा ही आ। गुरु नानक ने तो खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को सांझा दिता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक परमेश्वर की वंश हाँ, अंश हाँ, परमेश्वर के पुत्र हाँ।
बस इन्हां चीज़ां तो ही गुरु साहिबां ने ये सच का मार्ग चलाया सीगा भी ये गलत है। गुरु पातशाह कृपा करन। बुलाया बोली खसम दा वो मान किया तुद ऊपर है, तू आपे पाए थाए जियो मैनू तेरे ते मान है। तू आप ही अपने प्यारियां नू अपने चरनां विच टिकाणा दिना है, तू आप थां दिना। इस करके तैनू तीजे जामे विच निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, न्योटियां दी ओट, थावियां दा थाम भी कहा गया सी। तू आपे पाए थाए जियो तेरियां भगतां भुख सद तेरिया, मालका सानू तेरे दर्शनां दी ते तेरी भुख है। को सतनाम श्री। तेरिया भगतां नू तेरी भुख है, तैनू मिलन दी भुख है, तेरी लोड़ है। हर लोचा पूरन मेरिया, मेरे मन दे विच तैनू मिलन दी इच्छा है, ये पूरी कर। देहो दर सुख दातिया मैं गल विच लहो मिलाए जियो, कृपा कर मैनू गले ला लै, मैनू अपना बना लै। भगत रविदास जी भी ये गल कहंदे न, कहते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है। कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो, दर्शन देखे कदों दर्शन देगा। बहुत चिर हो गया सानू भटकदियां नू। भाव उन्हां अखौती धर्म के मुखिया ने शूद्र कह कह के लोकां नू और इस्त्रियां नू बड़ा लताड़िया सीगा। इस्त्री का भी जे सत्कार होया दुनिया विच अज, ते बाबे नानक ने शुरुआत की भंड जम्मिया भंड निमिया, भंड मंगण भी आहो भंडो होवे दोस्ती, भंडो चलै राहो भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखी है, जित जमै राजान। और इन्हां धर्म के अखौती मुखिया ब्राह्मणों ने ही गुरु प्यारो इस्त्री नू पैर की जुत्ती, घर की वलगण च रहन वाली, बस बच्चियां नू पालन वाली, रोटियां पकाउण वाली कहा सीगा। पर अज इस इस्त्री नू वडियाई मिली, बाबे नानक तो शुरुआत हुई, तो अज ये मनुख के बराबर मोढे नाल मोढा ला के सारे दफ्तरां विच भी काम करदी है, हवाई जहाज तक भी चलाउंदी है। को सतनाम बई जे इहनूं ज्ञान देओगे तो फिर ही अगला ज्ञान लऊगा ना। जिहड़े बंदे नूं सिखलाई नहीं देओगे वो किवें सिखूगा। और अज जिन्होंने पैरे शूद्र ते गरीब निमाने निताने कहा जाता सी, अज बाबे नानक की कृपा नाल ओह सुखी वसदे है। हुण होआ हलेमी राह जीओ। प्रीतम जी कहते हर लोचा पूर्ण मेरिया, मेरी इच्छा पूरी कर दे। देहो दर सुख दातिया मैं गल विच लहो मिलाए जिओ, सानू भी गले ला ला आपदे बना ला। तुद जे बड़ी अवर न भालिया, तेरे वर्गा मैनू कोई नहीं दिसदागा। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन्हें सबनों गले लाया, जिन्हें सब तो पहला शूद्र प्रथन तोड़ते हुए मरदाने मरासी नू मित्र बनाया। को सतनाम श्री। ये तोड़नी सी ना शूद्र वाली नीच जात पात छूट छात वाली गल तोड़नी सी ना, तो बाबे नानक ने मरदाने नू अपना साथी बनाया। जात सनाती होर हिंदवाणियां ये भी लेखे लाए भी ला लो। जात सनाती का मतलब है सब तो नीवी जात केड़ी है, मरासी दी। जब मरासी नू अपने गले ला लिया बाबे नानक ने, फिर बाकी सारे ही लग गए। को सतनाम श्री। इस करके तेरे वर्गा कोई नहीं। बहुत भालिया थां थां देखिया, ठोक बजाए सब डिठिया, तो सियापे लैन छड़ाए जियो, कोई तेरे वर्गा नहीं, तू ही छड़ाउण वाला है। मैं हर थां ते ठोकना भाव परखना, जिवें बीबियां घड़ा लैण वाले ठोला मार के देखदियां, इस तरह गुरु अर्जन देव जी कहते मैं थां थां ते जाके देख लिया, पर गुरु नानक वर्गा किते नहीं लभ्या। को सतनाम सी। जिन्हें सब तो पहला गरीबां नूं नवाजिया, इहदा नाम सब तो वधिया नाम गरीब नवाज भी है। को सतनाम सी, गरीबां नूं नवाजण वाला। मेरे प्रीतम जी कहने तू दीप लो पे आले आओ, केड़ा थां तू जिथे नहीं, तू सारे लोकां विच है, तू दीपां विच भी है। दीप केड़े जिहड़े समुद्रां दे विचाले छोटे छोटे देश आपां नक्शे विच दिसदे हरे रंग दे, नीला पानी है, हरे देश है, निके निके देश उन्हां नूं दीप कहंदे आ। उन्हां दीपां दे विच भी तू वस लै। केड़ा देश है जिथे तू नहीं हैगा? उहदी खास बोली है प्रेम। जिहड़ी प्रेम की बोली है ना, उहनूं पशु ते जानवर भी समझ लैंदे आ। सच जाणिओ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਪਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੋਲੀਆਂ, पर खास बोली है साच कहो सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ते प्रेम की बोली अखां दे नाल भी बोली जाती है। तुहाडीआं अखां विच प्रेम है, तुहाडा घरे पालतू जानवर भी तुहानूं समझ लूगा कि मेरा मालक खुश है। कहो सतनाम। तुहाडीआं अखां च क्रोध है तो वह कुत्ता भी जेकर रखिया होया ना वह वेख लूगा भी गुस्से च मालक ते मंजे हले वड़ के बह जाऊगा। कहो सतनाम। तो इस करके प्रेम की बोली सब तो वड्डी सानू दसी गुरु साहिबां ने। साच कहो सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मेरे प्रीतम जी आखिरी पंक्ति विच कहंदे तू थान थनंतर रब रहिया नानक भगता सच उधार जियो। तू सारियां दा आसरा है, खास करके भगता तेरे आसरे ते चलदे है, तू किसी दा सहारा नहीं लैंदे। सारी दुनिया का तू मालक है, भगतां दा तू सहारा है, आधार है, आसरा है। कृपा करके मैनू भी अपने गले ला ला। जब गले लाया ना फिर पंजवें पातशाह ने फिर एक होर बदलाव की गल दसी। जो सिख नूं गले लाउंदा है उहदे विच फिर एक बदलाव आउंदा है। वो फिर अगले पले विच गल करदे न हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा मैनू गुरु ने थापड़ा दिता है, हुण मैं बाबे नानक का पहलवान बन गया। कहो सतनाम श्री। हुण मैं बाबे नानक का पहलवान मल बन गया और मैनू घुलण दे हुक्म दिता है। कहंदे जा पुत इन्हां नूं ढा के आ। किन्हां नूं? इन्हां पंजां नूं। मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा सब होई छिंझ इकट्ठिया दयो बैठा वेखै आप जियो। हुण भगत सिख नाम जपण वाली रूह एक पहलवान के रूप च विखाउंदे आ पातशाह जी। तो फिर इसने ढाउणा किन्हां नूं है? पंजां विकारां नूं किवें ढाउणा है? ये आपां कल नूं सरवण करांगे पूरा पता, जिस दे विच पातशाह जी गुरु की कृपा मिलण तो बाद सिख दे विच की बदलाव आउंदा है ये आपां जाणांगे। विचारां इत्थे रोकदे हां, बोलदे अनेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।